Okay, so I think the questions are open. Okay. Okay, so firstly, congratulations. Teaser को काफी amazing response मिला था. गाने को Do you want the mic? No, this is the mic. These are the. Hey there. Do you want the mic? Okay. Am I audible? Yeah, yeah, Yes, yes, yes. टीजर तो काफी कमाल का. More than 4 lakh views आए थे टीजर को. Then गाना काफी कमाल का लग रहा है. What would you like to say? How excited you were for this launch? And after the teaser got out, tell us something about the. I think our leading lady should lead with the answer. Start. How was the feeling? The feeling was surreal. अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअली हो गया है. ये एक्चुअली हो गया है. So अभी अभी तक we are like lapping around my head entire experience, but the shooting was amazing. सब कुछ बहुत एकदम easily और smoothly हुआ था. कुछ कुछ shoots scenes काफी tough थे मेरे लिए Especially because for her. the especially the raining scene, the starting of the song where I'm coming out of the car, तो वो वाला scene बहुत मुश्किल था. बारिश में इतनी ठंडी में shoot करना काफी difficult था मेरे लिए, but yes, the entire experience was a learning experience. Plus, I had such great people on set. Our director Mohit sir and Nishant, सबने बहुत मतलब मदद की, सिखाया. तो वो experience एक learning experience ज़्यादा था rather than like a big thing is coming out. ऐसा कुछ नहीं लगा. But अब वो लग रहा है. अब वो जब पोस्टर आ गया, टीजर आ गया, अब समझ आ रहा है कुछ बड़ी चीज हो रही है. निशान आपका Yeah. कहना चाहोगे गाने को लेकर. गाना जब मुझे पता चला कि जवान तूफान करके गाना है एंड मीत ब्रोस वांट टू हायर मी अगेन एंड फॉर मी इट वाज लाइक a very big deal because like I said कि मेरे लिए it was always a dream to work with Meet Brothers and doing a second song with them that too so quickly, you know, it makes me feel really nice and really happy about myself. Talking about the song, शिमला में हमने शूट किया. It was very very cold लेकिन गाना इतना अच्छा था and Yashita did such a good job and I have to mention that जो बारिश का ही बता रही है वो जितना आपको easy लग रहा है नहीं. इतनी ठंड थी वहां पे कि लिटरली लोग कांप रहे थे और उसमें ये भीगी हुई अपने शॉट्स बार बार 2-3 घंटे तक पूरा भीग के शॉट्स ले रही थी एंड मुझे लिटरली तरस आ रहा था इसके ऊपर बट देन आई वाज लाइक कोई बात नहीं ऐसी सीखेगी करने दो. सो आई गेव हर सम टफ लव देयर and yeah, the song has come out really beautiful and Ash has given such a beautiful voice to it. Thank you very Thank much. you, Thank Ash. you. it's, Thank you. it's First, sounding big so good. congratulations for your Yeah. the big song, and one more song is coming up. Tell us something about how excited you were and what kind of response that you are looking forward from this song. तो पहले मेरा मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा. गाना तो इतना अच्छा गाया बोलने तुमने के यार. लिए. तो जब द फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टूडियो में गया आई हर्ड द सॉन्ग, मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन था मीट ब्रदर्स, सो बिग पार्टी, बिग मतलब एक्स्ट्रावेगेंट, यू नो, डांस सॉन्ग. And Like a then baby doll or a chicken something, like you. हाँ, exactly. So then I heard the song Jawa Tufan, and they said, look, Ash, we are, हमारे पास एक नया label है, we have a new composer, we have new writers, and कुछ नया चीज निकल रहा है from the Meet Brothers camp. So मैं गाना सुना, I was like, okay, this is different, but मैं कैसे गा सकता हूँ ये गाना, because मेरे गाने like list में ये टाइप का गाना नहीं है. So especially like this, so ये थोड़ा मेरे लिए it's a very intense romantic, young intense romantic song. So anyway, कोशिश किया, I recorded the song, then they said, हाँ, we like this, but एक और बार गा दो, and I was like, okay then. तो मैं एक और बार गा लिया in Kolkata this time, and somehow we are here today with the song. And अभी मैंने this is the first time I've seen the video. First time I've The met first time these we've two seen the lovely video young today, we are all actors. so happy to see it. And these guys did a great job on the video. I know it's so tough. Like Shimla must have been very. यहाँ पे बहुत ठंड है मेरे लिए. So Shimla must have been really It cold. was really Yeah. nippy, Like really so, cool. so yeah, really nice video, really nice vibes, and I hope सबको पसंद आया गाना. And yeah, check the song out on YouTube. Share the song and Yes, make reels of yes, the song. yes. विशाल आपसे जानना चाहूंगा कि जो लास्ट सॉन्ग था वो भी आपका ही था और ये सॉन्ग भी आपका ही है. कई लगता है कि मीत ब्रदर्स के लक फैक्टर आप बन रहे लक का तो पता नहीं बट मेरे लिए लक फैक्टर बन गया दैट मीट ब्रदर्स हैव यू नो done two songs with me and like I said मेरा पहला गाना जब आया था सर के साथ भाइयों के साथ for me it was a level up in my career. So this second song is another level up for me. So thank you so much. Thank you. Really दिल से thank you. Nishant, if you can tell us about the location where it was being shoot or filmed as. We were shooting in Shimla, and it was really cold, a very beautiful weather, but in a way, and the locations were really, really pretty, है ना? Yeah. Uh,
तो जो कॉटेज में हमने शूट किया है, जो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में, दैट कॉटेज इज सो ब्यूटीफुल कि हम, मुझे लगता है कि इस गाने में भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो इतना ब्यूटीफुल है यस, कॉटेज। रियल लाइफ में तो वो बहुत ही सुंदर था। If you talk about the scene, then the scenes were also a shooting one. So, has it happened any time? If you can relate yourself to the song theme where you are on a shoot and there you got a chemistry with your co-actor or co-actor. Yeah, but in this video, what you've seen is that Yashita has cracked a deal and she's got a chance to debut with Meet Brothers in their music video. And I am just somebody who's really happy for her. Like I have a lot of love for her, which I have not told her. मैंने बताया नहीं कि मैं प्यार करता हूँ इससे. But I'm just happy to see her grow in life. And in the end, she realizes कि okay, he loves me so much that he only wants the best for me, and that's why she loves me back. And Yashika, your debut and how you wrote this song, tell us something about it. Yeah, so basically the journey was कि audition दो, audition दो, audition दो, and then somehow I got in contact कि मतलब Meet Brothers एक गाना ऐसे बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, so that was through sources and stuff. मुझे ऐसा पता चला, and that's when I started knocking their doors कि भाई देख लो, audition ले लो. So then yeah, couple of times I met them. I met Rajiv sir, and I met many people in their office as well, and then through talking and through auditions, they analyzed me, they saw my talent, and that's how I reached out. Can you sing few lines from the song? Sure. जवां तूफान में तेरा मिलने आना, झुकी आंखों से तेरा शर्माना, यूं तो कुछ ना भुला पाया हूँ लेकिन something like that. Oh yeah, don't stop. You'll have to hear the rest of the Don't stop. You can- But my favorite part वो ये गाने का favorite part मैंने, ये पगला दिल कहीं लगता नहीं जब से मिला है तू, कि मेरी बंजारगी आवारगी का एक ठिकाना तू, ओ जवा तूफान में तेरा भीग जाना. Really nice. वो पार्ट नहीं है गाने का, just added. Right. Okay, thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you so much, guys, for being here. Thank you so much for all your questions. And Sure, sure, sure. Okay, so firstly, 2020 थोड़ा क्वाइट करवा देंगे एक बार. silence, guys. Silence, please. हाँ, बेटर. थैंक यू. 2023 का मीट ब्रदर्स का पहला गाना है, काफी अमेजिंग. टीजर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, मोर देन 4 लाख व्यूज. एंड जिस तरह मैंने गाने को देखा, काफी अमेजिंग गाना लग रहा है. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द सॉन्ग? 2023 की शुरुआत इतने अच्छे गाने से आप लोग कर रहे हो, किस तरह से उम्मीद है 2023 को लेकर? ये कुछ गाने होते हैं जिसमें आप देखना चाहते हैं कि कितने व्यूज आए, लोगों को कैसा लगा. कुछ गाने होते हैं जिनके लिए हम व्यू देखते ही नहीं, जिनके लिए हम कभी चेक भी नहीं करते कि व्यू आ भी रहे कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम है ये गाना जिंदगी में अपनी जगह बनाएगा. बहुत सारे ऐसे रोमांटिक गाने थे, जैसे हमारा पहले गाना था, एक रात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है. वो एक सनी लियोनी की फिल्म थी, वन नाइट स्टैंड, उसमें गया था और उस फिल्म को ज्यादा प्रमोशन नहीं मिली थी और वो फिल्म ज्यादा आगे आ ही नहीं पाई. लेकिन हमने कभी मुड़ के देखा ही नहीं कि उस गाने के व्यूज आ रहे नहीं आ रहे. हमें मालूम था कि पिक्चर चले ना चले, वो गाना अपनी जगह बनाएगा. तो जवां तूफान के अंदर एक फ्रेशनेस है जो हर्षित से आई है, क्योंकि हम नए लोगों के साथ इसलिए काम करते हैं क्योंकि नया इंसान अपना अलग एक साउंड और म्यूजिक लेके आता है. तो हर्षित ने जब हमें जवां तूफान का सोल जो जब गा के सुनाया, जो कि कैसे उसकी एक वाइब है उसके दिमाग में, तो हमें इतनी अच्छी लगी दोनों को. पहले हरमीत ने सुना, हरमीत ने फिर मेरे को बोला भाई बहुत तगड़ा गाना, एक बार सुन लेना. तो मैंने कहा हरमीत बोल रहा है, हरमीत तारीफ कम करता है, तो मैंने कहा अगर बोल रहा है तो कुछ बात होगी. तो फिर मैं मिला, मैंने सुना बेसिक, तो हमने कहा इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, तो इसको करते हैं. फिर वो ऐसे एक बन गया गाना. और अब इसमें एक और बहुत बड़ी बात थी कि जो नया जज्बा होता है, नई टीम का जज्बा, तो हमारे जय तन्ना जी ने लिरिक्स लिखे हैं, ये तूफान की तरह हमारे पीछे पड़ गए कि भाई इस गाने को अच्छे से बनाना है और अच्छे से प्रोग्राम करना है, मिक्स करना है. तो आज मीत ब्रदर्स है, लेकिन हम लोग अपनी टीम की वजह से, अपने भाइयों की वजह से हैं, आप लोगों की वजह से हैं. आप लोग हमें रिकॉर्ड करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो बात बाहर तक जाती है. हम बस यही कहना चाहते हैं कि इट्स अ वेरी प्योर सॉन्ग. ऐसा नहीं है कि ये कहीं राग, कहीं किसी से कॉपी हुआ है कुछ. इट्स वेरी ओरिजिनल सॉन्ग.
और आजकल आपको पता है ओरिजिनल कम बनता है, रिक्रिएशंस हो रही हैं। तो मीडिया को यही कहना चाहेंगे कि भाई अगर आप सब लोग बहुत खुद ही जवां हैं, इसको तूफान की तरह बस फैला दीजिए। और जय तन्ना जी ने क्या सोच के लिखा, इसको किसके ख्यालों में कौन सी थी वो कन्या जिसको तूफान की तरह तुमने लिख दिया? किसको दिमाग में था या फिर यू हैव रिटन दिस सॉन्ग लाइक नहीं, अभी अब बात ऐसा है ना कि देखो, लिरिसिस्ट जो होता है ना, उनका एक चीज अच्छी ये बात होती है कि वो तो स्टोरी आपसे लेते हैं। यस आपका दिल टूटेगा तो मेरी दुकान चलेगी और आपको प्यार होगा तो भी मेरी दुकान चलेगी। खुद का दिल तोड़वाऊंगा तो मेरी दुकान थोड़ी देर के लिए पॉज पे आ जाएगी। तो Good मैं बात। बस मैंने एक्चुअली ऐसी एक सिचुएशन देखी है एक टाइम पे मेरी लाइफ में। तब तो मैं बहुत ही मतलब एक रिटेल शॉप में काम करता था, तब की बात है। मैंने सच में एक लड़की को, बहुत ही एक जवां तूफान में फुल भीगते हुए एक लड़के को मिलते हुए देखा है। जब सारी चीजें बंद हो रही थी, दुकानें बंद हो रही थी, वो लड़की भाग भाग के बस सिर्फ उसको मिलने आई थी और वो लड़के ने लिटरली दरवाजा रोका था। ये सिचुएशन मेरे दिमाग में छप गई थी और ये बहुत पुरानी बात है वैसे। और बड़ी बात ये थी कि तूफान तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये जो वर्ड है ना, जवां तूफान, ये नई चीज में क्या लाता है कि ये तूफान उस चीज का है कि दिल में जो तूफान उमड़ता है ना, आप जब भी किसी को दूर से देख के इतना पसंद कर जाओ कि योर हार्ट इज रेसिंग, और वही व्यक्ति जब पास आ जाए ना तो वही धड़कन रुक जाती है। और ये जो दोनों के बीच का जो तूफान है ना, जब वो प्यार का तूफान पीक पे हो ना, उसको जवां तूफान बोलते हैं। वाज इट योर सजेशन फॉर द टाइटल और किसी और का सजेशन? इनके लिरिक्स थे। इनके लिरिक्स ही टाइटल का सजेशन। बट इनमें भी एक बात है कि मैं लिरिक्स लेके गया, लेकिन वो बोलते ना कि जौहरे की नजर जो होनी चाहिए, मैं तो इस गाने को भीग जाना बोला था। क्योंकि इसका एक है कि लास्ट लाइन आती है कि जवां तूफान में तेरा भीग जाना। तो मैं जब इनके पास भी लेके आया, मैंने दोनों को बोला, बोले गाना है भीग जाना भीग जाना भीग जाना। ये इन दोनों का कहना था कि यार तू समझ नहीं रहा है बात को अभी भी, तेरे गाने में एक ऐसी चीज तूने लिखी है जो एक्चुअली में बहुत अलग Brand, टाइटल है, एक एक ब्रांड brand है। बनती है, और वो है जवां तूफा। वरना हमको ही पता नहीं चला था कि अच्छा जवां तूफा कुछ है। काफी बार होता है लिखने वाले लिखते हैं, बट इट्स देयर टैलेंट टू एक्चुअली सी के सही बात क्या है, गलत बात क्या है। आप जैसे मुझे मनमीत ने बहुत एक अच्छी चीज सिखाई थी लिखते वक्त, कि जय हमेशा ये सोचो कि एक्शनेबल लिरिक्स क्या होते हैं। मतलब मैं तो मेटाफोरिक भी लिख सकता हूँ ना, मैं चांद तारों की बातें भी कर सकता हूँ, लेकिन सच बात यह है कि हम चांद तारे तोड़ के किसी के लिए नहीं ला सकते, ये सही बात है। दैट्स व्हेन मनमीत ने मुझे सिखाया कि क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो सच में एक्शनेबल हो, जो वीडियो में हमको दिखता है कि मेरे सीने से आके गले गले लग जा तू, या सीने से लग जा तू, तो ये एक्शनेबल पॉइंट है। कोई ऐसी बात नहीं मैं तेरे लिए तारे तोड़ के लाऊं। और तारे तोड़ने के लिए तो आजकल कोई लड़की बोलती भी नहीं। आज की लड़कियां कहाँ बोलती हैं तारे तोड़ लाओ, वो सिर्फ कहती हैं हमारे लिए एक इंस्टा रील बना दो बस। उससे एक और सवाल मैं मीत ब्रदर्स से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से एल्बम है एमबी म्यूजिक की मैं बात करूं, इतने सारे गाने आपने दिए राइट फ्रॉम द डेकेड व्हिच वेंट, इतने सारे गाने की रिक्रिएशन पार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये फैंस की मांग है कि एमबी म्यूजिक पे रिक्रिएशन पार्ट अबाउट योर ओल्ड म्यूजिक। जिस तरह आपने इजाजत की बात की, इजाजत को भी रिक्रिएट करके कुछ ऐसा मिक्स मिक्सचर नहीं हो सकता? देखिए, रिक्रिएशन की एक स्पेसिफिक डिमांड आती है तो ही हम लोग करते हैं, बिकॉज ऑडियंस भगवान होती है। ऑडियंस है तो हमारे किचन चल रहे हैं और हमारे गाने को अप्रिसिएशन मिल रहा है। ऑडियंस कहती है भाई कि आप ओरिजिनल सुनाओ, किसी और का सुना है क्यों सुनाओ। सुना है इसलिए होता है क्योंकि जो म्यूजिक कंपनीज होती हैं, वो म्यूजिक कंपनीज को सेल करने में बड़ा आसान होता है। अरे ये तो सुना है, फटाफट लोगों को पसंद आ जाता है। हम यहाँ बेचने नहीं आए हैं, हम यहाँ बिजनेस करने नहीं आए हैं, हम लोग सब प्योर आर्टिस्ट हैं। विच इज वाई एमबी म्यूजिक, जो कि हमारे पार्टनर है राजीव जी, उनके साथ हमने स्टार्ट करा है। इट्स बाय द आर्टिस्ट फॉर द आर्टिस्ट। मतलब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्टों के लिए लेबल खोला है। हम लोग यहाँ बिजनेस तो अपने आप हो ही जाएगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड द इमोशंस, क्योंकि आज ये लोग और 10 लेवल के पास जाएंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है हर स्टेप पे, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, प्रोग्रामिंग, प्रेस इंटरव्यूज, हर चीज को कैसे इंपॉर्टेंस दी जाती है, एक आर्टिस्ट को कैसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसलिए हमने लेबल खोला। और इसलिए हम लोग रिक्रिएशन नहीं करना चाहते, हम ओरिजिनल्स करना चाहते हैं, बिकॉज ये लोग ओरिजिनल लेके आए हमारे पास। और दूसरी बात यह है कि अभी इतना ओरिजिनल म्यूजिक इस वक्त दिमाग में है। अभी मुझे लगता है कि हरमीत और मेरी अभी जर्नी शुरू हुई है। अभी आपने हमारा मेरे ख्याल से सिर्फ 15-20% म्यूजिक सुना है जो हमारे अंदर है। तो अभी अगले 10 साल में हमको बहुत कुछ नया लेके आना है जो आप लोग जिंदगी भर सुन सकें, एंजॉय कर सकें, आपकी फैमिलीज, आपके बच्चे। हमारे गानों पे छोटे बच्चे बहुत डांस करते हैं, तो हम वो खुशियां और 10 साल देना चाहते हैं और वो ओरिजिनल म्यूजिक से हो पाएगी। मीत ब्रदर्स में रिमेंबर मैं आप लोग से कुछ दिन पहले मिला था आपके म्यूजिक लॉन्च पे, टी सीरीज के ऑफिस में बना लिया, आपको शायद याद होगा। जी जी, आपका सवाल भी याद है मुझे।
काफी अच्छे बैक टू बैक गाने आप लोग दे रहे हैं। रियली यू गाइस हैव मेड अ वेरी गुड बेंचमार्क इन इंडस्ट्री। और ये एमबी म्यूजिक एक अपना खुद का एक लेबल खड़ा करना और इतने अच्छे अच्छे गाने उसमें देना, जो कि आपने बहुत सही बात बोली थी स्टार्टिंग में कि ये दिल में बस जाने वाला गाना है। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है एक बड़े लेवल के साथ अपने गाने को लाना और एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट गाने को लाना, कितना कुछ फर्क देखने को मिलता है उसमें एज एन आर्टिस्ट साइड? देखिए इसमें कोई शक ही नहीं है कि बड़े लेवल पे ऑडियंस ज्यादा होती है तो पुश मिलता है, लेकिन बड़ा लेवल कितना ही म्यूजिक रिलीज कर पाएगा, तो बाकी म्यूजिक का क्या होगा। इसलिए हमने एमबी म्यूजिक खोला। आज भगवान की दया से हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और हम गाने इसलिए लेके आते हैं कि जैसे बहुत सारा टैलेंट इंडिया में अब आ रहा है और अब जय जैसे बहुत अच्छे गाने इनके साथ और भी 2-3 कर रहे हैं हम। इतने अच्छे गाने हैं और अगर वो बड़े लेवल के लिए वेट करेंगे तो इनको वेटिंग में उनकी जो काली दाढ़ी सफेद हो जाएगी। और मेरा इसमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। हम लोगों ने जब ये लेबल खोला तो हमने रिसर्च करा कि हम लोग बड़े लेबल्स के अगेंस्ट कैसे खड़े होंगे, और मुझे आपका सवाल बहुत ही इंटेलिजेंट लगा। बहुत रेयरली इतने टेक्निकल सवाल आते हैं। तो फैक्ट बड़ा सिंपल है, नंबर्स है। आप जाके देख लीजिए, बड़े लेबल्स पे बहुत सारे गाने आते हैं जो कि फ्लॉप होते हैं और कुछ नहीं होता उनका। और मैं आपको ऐसे कई छोटे लेबल्स बताऊंगा जो पंजाब के भी हैं, जैसे एक लहंगा करके गाना आया था गीत MP3 से, बिल्कुल किसी ने ना सुना, उस लेवल का भी छोटा, लेकिन वो 1 बिलियन ऑन यूट्यूब है। सो आज की डेट में ऊपर वाले की दया से डिजिटल और ऑनलाइन इतना स्ट्रांग है कि गाना अगर अच्छा हो, वीडियो अच्छा हो, लिरिक्स अच्छे हो, तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। आज जस्टिन बीबर का जो अगर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर है, उसकी मम्मी ने CD रिलीज कर दी थी ऑनलाइन और आज वो जस्टिन बीबर है, बिगर देन एनीवन यू कैन नो। तो आप डिजिटल और प्रेस के लिए जानना बहुत जरूरी है कि अब बड़ा छोटा कुछ नहीं रह गया। अच्छा कंटेंट इज एवरीथिंग। गुड वर्क, गुड हार्ड वर्क, इंटेंशन, ऑनेस्टी और मेहनत से चल सकता है, चाहे छोटा लेवल है बड़ा लेवल हो। ये आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है। So what according to you both is कि अगर कोई एक नया इमर्जिंग आर्टिस्ट आ रहा है, so he should choose for a label or he should go for an independent artist according to you? He should just go for great product। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि वो अपने घर से भी रिलीज करे तो बच्चा जान जाए। देखिए मैं आपको, वैसे तो हम लोग नाम नहीं लेते किसी का, लेकिन क्योंकि एक टैलेंट है और हम अच्छी बात बोल रहे हैं तो नाम ले सकते हैं। जैसे ढिंचाक पूजा, उन्होंने जो भी करा वो अपने घर से बैठ के करा और वो सब फेमस हो गई। उन्होंने कैसा भी कंटेंट निकाला हो। तो आज की डेट में किसी भी तरीके का टैलेंट हो, हमें किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। आर्टिस्ट, हिंदुस्तान के आर्टिस्टों के लिए गुड न्यूज ये है कि आपके पास अच्छा प्रोडक्ट हो या आपके पास अच्छा आइडिया हो इंटरव्यू लेने का, तो आपको कोई भी चांस देगा। शाहरुख जी भी बोलेंगे कि आइए, तो हर किसी को मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे आज के जो लेटेस्ट जो हार्ट थ्रॉब्स हैं, जैसे AP ढिल्लन है, किंग है, ये दोनों किसी बड़े लेवल से नहीं आए। ये लोग बस आ गए क्योंकि इनके अंदर म्यूजिक था। तो जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, इंटरव्यूज जो देख रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप अपना म्यूजिक बस अच्छा बनाओ और उसको आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप रिलीज करो, और जो चीज़ अच्छी होगी उसको कोई रोक नहीं सकता। और सर जैसा कि आपने कहा कि अभी ये जो हमारी जर्नी है, मीट ग्रोथ जर्नी जो अभी शुरू हुई है, तो कहीं वो इसी वजह से नहीं कि MV म्यूजिक पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एनी अदर लेवल? नहीं, इस बार इनफैक्ट पिछले 3-4 साल में हम थोड़ा लेवल में, और हमारी MB म्यूजिक एकेडमी इस वक्त इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स को पढ़ा रही है, जिसको हम काफ़ी इंडिया में हर जगह लेके जा रहे हैं। और इन चीज़ों के बीच में हमारा लाइव 101 प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आर्टिस्ट 300 जॉब्स आर्टिस्ट को हर महीने मिलती हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। जो परफॉर्म आप कैफेस क्लब में देखते हैं, जो बॉम्बे, दिल्ली में जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं क्लब, वो हमारी लाइव 101 कंपनी के थ्रू आते हैं। तो इसकी वजह से म्यूजिक कम बना है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब इस साल हमारी 5-7 फिल्म आ रही है। ड्रीम गर्ल 2 है, सत्य प्रेम की कथा है, कार्तिक आर्यन, और बहुत सारी फिल्में। अभी हमारा लेटेस्ट गाना आपने सुना होगा, क्योंकि आज हम यहाँ आए हैं तो आपको गा के सुना देते हैं। तो विकी कौशल ने बहुत क्यूटली उस पर परफॉर्म किया है, गोविंदा नाम मेरा। हाँ, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए आप लोगों के लिए, अदर देन टिपिकल मीत ब्रदर्स पुराने स्टाइल का गाना है हमारा। मैं ता तेरी लड़ी है पप्पी, तूने हंस के देनी है जब भी, मैं ता तेरी लड़ी है पप्पी, तूने हंस के देनी है रिदम जब भी। ये दिल मेरा हैप्पी शैपी है, तू कॉफी जैसी फ्रैपी 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 है। लेना देना है लव की पॉलिसी, मैं ता तेरी लड़ी है पप्पी, तूने हंस के देनी है जब भी, मैं ता तेरी लड़ी है पप्पी, तूने हंस के देनी है
जब भी Thank you so much, sir. Thank you so much.